So, ninth chemistry. In first chapter, plasma has been not discussed for you. Now plasma. What is plasma? It is the fourth state of matter in which the particles are in gaseous form, means gaseous form at the high temperature. When gas particles gives out its own all electrons and they becomes positively and negatively charged, and this kind of state is known as plasma state. It occurs at high temperature. It forms in sun. In sun at high temperature, when gases give out its all electrons, then they becomes the and mixture of positive and negatively charged and state. This state is known as plasma state. Plasma state is electrically neutral. So this stage is fourth stage of matter. Now BEC, Bose-Einstein condensate. This was discovered by Satyendra Bose and Albert Einstein, in which they considered that the fifth state of matter, that particles about the state of matter, that why it is got name Bose-Einstein condensate, because Satyendra Bose and Albert Einstein has discovered this, so it names as Bose-Einstein condensate. BEC has been made by cooling the vapor of rubidium-87 at super low temperature by Eric Cornell and Carl Willman on June 5th, 1995. Then they get the fifth state of matter, and this is known as the BEC. इस स्टेट में क्या किया गया भाई कि जिस तरह से उन्होंने इसे फोर्थ स्टेट था, तो इसमें फोर्थ स्टेट प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है, और इसमें जो है क्या होता है, इसमें किसी वेपर को जो है रुबिडियम-87 के वेपर को जो है सुपर कूल किया गया, बहुत लो टेम्परेचर पर और लो डेंसिटी पर इसको रखा गया, तो एक फिफ्थ स्टेट का मैटर प्राप्त हुआ, जिसको हम BEC कहते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस जो आपने भेजा था फर्स्ट चैप्टर से, उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं. Why ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? मीन्स कि 273 केल्विन पर आइस कूलिंग के लिए, ठंडा करने के लिए सेम टेम्परेचर पर वाटर से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इफेक्टिव है. क्यों? बिकॉज एट 273 केल्विन आइस टेक्स मोर हीट टू कन्वर्ट देमसेल्फ इन वाटर at the same temperature. It needs 80 calories of heat for per gram of ice. 1 gram ice needs 80 calories of heat to convert themselves at 273 Kelvin. Then means 273 Kelvin means 0 degree Celsius. The question, the temperature may be asked at 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वह क्या होता है, वह कम हीट लेता है, और
जो आइस है वह अपने आप को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हीट लेता है, ज़्यादा हीट जो है लेता है, इसलिए जो है आइस क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है यहाँ पर इस वाटर की तुलना, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। उसका कारण यह है कि आइस जो होता है उसमें लेटेंट हीट, इसको कहते हैं लेटेंट हीट के कारण जो है वह ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण जो है कूलिंग के लिए आइस ज़्यादा बेहतर होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड and iron almirah is solid at room temperature. Water at room temperature is liquid because water has property of fixed volume but not fixed shape. Its shape is not fixed. So water at room temperature is liquid and iron, second, it's water at room temperature is liquid because water has property at room temperature, it is liquid because it has property to flow, because there is less molecular force of attraction between their molecules, though therefore they have property to flow. Therefore, it is in liquid form. Now, an iron almirah is solid at room temperature. Means, अब इसको हिंदी में भी समझिए, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों है? उसका कारण यह है कि वाटर का जो आयतन होता है वह फिक्स होता है और आकार फिक्स नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता है। इसके कारण जो है यह क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और आकार निश्चित क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अणुओं के बीच जो है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, इसलिए जो है लिक्विड स्टेट में होता है। दूसरा है, एन आयरन आलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आयरन आलमीरा सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि आयरन जो होता है रूम टेम्परेचर पर उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। मीन्स वॉल्यूम एंड साइज फिक्स एट रूम टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। What does this mean? अर्थात आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन है, इसका क्या अर्थ है? इसका इट मीन्स दैट आइस विल मेल्ट एट 273 केल्विन एट जनरल टेम्परेचर। सो general pressure, because melting point of ice is 273.16 Kelvin, means at 273.6 Kelvin ice will melt in water form. It means it is the fix. 273.16 Kelvin is the fixed point at which ice melt into water. अर्थात किसी आइस का जो है 273.16 केल्विन जो तापमान है, यह क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, इसका गलनांक है। अर्थात इस सामान्य अवस्था में आइस अर्थात बर्फ 273.16 केल्विन तापमान पर बर्फ अवस्था से जल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर इफेक्टेड विद इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द प्रेशर। किसी
किसी मैटर के पार्टिकल में पर प्रेशर बढ़ाने और घटाने पर उसके पार्टिकल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में उसके पार्टिकल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु गैसीय अवस्था में, इन गैसियस स्टेट, व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, देन द वॉल्यूम बिकम्स लो, उसका वॉल्यूम कम होता है, अर्थात उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, और उनके बीच और अधिक यदि उनका प्रेशर बढ़ाया जाए तो क्या होता है, उनकी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। माने उनके जो मॉलिक्यूल्स जो है वो रन करते रहते हैं, रैंडमली इधर उधर गति करते रहते हैं, वो क्या होता है, वो सीज हो जाता है, वो कम होने लगता है। मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की जो होती है वो कम हो जाती है प्रेशर बढ़ाने पर। और यदि बहुत अधिक प्रेशर बढ़ाया जाए तो क्या होता है, वो लगभग सीज हो जाती है प्रेशर बढ़ाने पर। किंतु यदि प्रेशर, क्योंकि जिस तरह से गैसेस हैं, तो गैसेस क्या होता है, गैसेस को अगर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो क्या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो मॉलिक्यूलर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो बहुत कम हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसी तरह से यदि हम गैस का प्रेशर जो है हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स की, उनके पार्टिकल्स की मॉलिक्यूलर एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात उसका जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, अर्थात इधर उधर वो गति करने लगते हैं, इधर उधर मूवमेंट करने, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। यह जो है इन पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके आगे हम अगले चैप्टर का शेष पार्ट अगले वीडियो में हम भेजेंगे। इस जो प्रश्न दिया गया था उसका उत्तर हमने दे दिया है, आप स्वयं इसको लिख लेंगे जो हमने उत्तर दिया है।